بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناولکس آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناول جرم تمنا بائی ہما وقاص کی قسط نمبر 5 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئے گی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ آیت کے التفات کا سلسلہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ وہ اب مجھے لیپ ٹاپ دے رہی تھی۔ میں نے لیپ ٹاپ تھاما اور گاڑی سے باہر دیکھنے لگا۔ سن گلاسز کی اور سے بھی میں اس کی نگاہوں کا خود پر مرکوز ہونا محسوس کر سکتا تھا۔ وہ مجھے دیکھ رہی تھی اور میں کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ اگر میں سیٹ تاج ہمدانی کی ساری حقیقت ایکسپوز کر دوں تو کیا ہوگا؟ تاج ہمدانی جیل چلا جائے گا۔ میں آیت کی جاب کو لات ماروں گا اور آرام سکون سے اپنی زندگی صبور کے سنگ گزاروں گا۔ ہادی، چلو، لوکیشن آ گئی۔ اس کی آواز پر میں چونکا۔ وہ مجھے باہر نکلنے کا کہہ رہی تھی۔ میں نے سر کو ہلا کر اس کے حکم کی تعمیل کی۔ وہاں پہلے سے ہی کچھ لوگ موجود تھے۔ وہ ان لوگوں سے لوکیشن ڈسکس کرنے لگی۔ وہ نہایت پر اعتماد سے ان لوگوں کے ساتھ ہوٹل کی تعمیر کے متعلق بات کر رہی تھی۔ میں ان کے برابر میں ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ وہاں سے کام نپٹا کر وہ مجھے ایک ہوٹل میں لنچ کے لیے لے گئی۔ اب وہ مجھ سے مکمل طور پر پیشہ ورانہ انداز میں گفتگو کر رہی تھی۔ اس نے مجھے مختلف میٹنگز کے شیڈول کے متعلق بتایا۔ لنچ کے بعد ہم ہوٹل گئے۔ وہاں کے تمام کام دیکھنے کے بعد قریباً رات 9 بجے میں پھر سے ہمدانی ہاؤس میں تھا۔ تاج ہمدانی اور آیت کے بہت اصرار کے باوجود میں نے ڈنر نہیں کیا اور گھر واپس آ گیا۔ واپس آ کر میں اتنا تھک چکا تھا کہ کھانا کھاتے ہی ایسا بستر پر گرا کہ کوئی ہوش نہیں تھا۔ رات 11 بجے کے قریب صبور مجھے فون کرتی رہی، پیغام بھیجتی رہی، لیکن میں گھوڑے بیچ کر سوتا رہا۔ میں اب روز صبح میں 8:30 بجے ہمدانی ہاؤس ہوتا تھا اور رات کو بھی اکثر ڈنر کے بعد جاتا تھا۔ مجھے آیت کا غلام بننے 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ آیت ہر روز گھر سے باہر نہیں جاتی تھی، جس کی وجہ سے میرا زیادہ تر وقت ہمدانی ولاس میں گزرتا تھا۔ میں اس کے لیے پیے کم، اس کے دل بہلانے کا سامان زیادہ تھا۔ مجھے ایسا لگنے لگا تھا کہ میں صرف اس کے پاس بیٹھنے کی 3 لاکھ کماؤں گا۔ صبور کے اور میری آئے دن جھگڑے ہونے لگے تھے کیونکہ میں اس کو وقت نہیں دے پا رہا تھا۔ یہاں ہمدانی ولاس میں جان بوجھ کر اس سے رابطہ نہیں کرتا تھا کیونکہ میں آیت کو اس بات کی بھنک بھی نہیں پڑنے دینا چاہتا تھا کہ میں صبور سے محبت کرتا ہوں۔ آیت آرام کرنے کے غرض سے یا پھر تیار ہونے اپنے کمرے میں جاتی تو میں یوں ہی پورے ولاس میں گھومتا رہتا، اور اسی دوران میرے ہاتھ ایک خبر لگی جس نے میری سوچ کے گھوڑے دوڑا دیے۔ تاج ہمدانی کے بھائی بالاج کے کاٹن کے کاروبار کے ساتھ وہ غیر قانونی کام بھی کر رہا تھا۔ پرسوں رات وہ کوئی ٹرک روانہ کروا رہا تھا جس کی ہدایت وہ اس وقت اپنے گنڈوں کو دے رہا تھا۔ میں اس کے آفس کے ہی ایک دروازے کی اور سے یہ سب سن رہا تھا۔ وہ ٹرک کا جو نمبر بتا رہا تھا میں نے جلدی سے اپنے موبائل پر نوٹ کر لیا۔ میں سوچ چکا تھا کہ مجھے اب کیا کرنا ہے۔ مجھے تاج ہمدانی کے سر پر اسرار کاموں کی کھوج لگانی تھی۔ وہ مجھے ہلکا سمجھ رہے تھے، لیکن میں نے چند ہی دنوں میں اندازہ لگا لیا تھا تاج ہمدانی صرف ایک بہت بڑا بزنس مین ہی نہیں، 2 نمبر دھندوں میں بھی ملوث تھا۔ اس نانا اور نواسی سے جان چھڑوانے کا اب صرف ایک ہی راستہ تھا۔ میں ہر کام بہت احتیاط سے کرنا چاہتا تھا۔ اس رات میں آیت سے اجازت طلب کر کے ولاس سے جلدی نکل آئے اور پھر قریبی فون بوتھ سے میں نے پولیس اسٹیشن پر کال کی اور تمام تفصیل سے آگاہ کر دیا۔ اب بس مجھے پرسوں رات کا انتظار تھا۔ میں ہادی کو زیادہ سے زیادہ اپنے قریب رکھ رہی تھی۔ میں جانتی تھی کبھی کبھی عادت بھی محبت میں بدل جایا کرتی ہے۔ میں چاہتی تھی اسے میری عادت ہو جائے، اور میں نے محسوس کیا تھا کہ وہ اب پہلے کی طرح بیزار اور غصے میں نہیں رہتا تھا۔ ہاں، البتہ اس کے تاثرات اب بھی سپاٹ رہتے تھے۔ اکثر تو مجھے اس کے یوں رپورٹ جیسے بیہیو پر ہنسی آنے لگتی، اور اب بھی میں بظاہر تو ٹی وی اسکرین پر نگاہیں جمائے بیٹھی تھی، لیکن یاد اسی کو کر رہی تھی۔ میں لاؤنج میں بیٹھی نانا بھی کا انتظار کر رہی تھی کیونکہ وہ آج کل کچھ زیادہ ہی مصروف رہنے لگے تھے، اور مجھے رات کو ان سے باتیں کیے بنا نیند نہیں آتی تھی۔ پتہ لگاؤ یہ کس خبیث کی حرکت ہے۔ نانا بھی کی گرجدار آواز سن کر میں سر پٹا کر اپنے خیالوں سے باہر آئی۔ وہ لاؤنج سے کچھ دور لابی میں کھڑے چند آدمیوں پر برس رہے تھے۔ میں تجسس میں اپنی جگہ سے اٹھی اور ان کے پاس آ گئی۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے آدمیوں کو جانے کا اشارہ کیا اور مجھے ساتھ لے کر لاؤنج میں واپس آ گئے۔ نانا بھی خیریت؟ پریشان دکھائی دے رہے ہیں؟ میں نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے تشویش سے پوچھا۔ نہیں، ایسا بھی کوئی پریشان نہیں ہوں، بس کسی خبیث نے پولیس اسٹیشن کال کر کے ہمارے بارے میں اول فول بکا ہے۔ SHO کی کال آئی تھی، مجھے پتا چل جائے ایک دفعہ یہ کون میری آستین کا سانپ بنا بیٹھا ہے۔ چھوڑوں گا نہیں، نانا بھی غصے میں دانت پر دانت جمائے کہہ رہے تھے۔ میں نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مسکراتے ہوئے تسلی دی۔ آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، مت پریشان ہوں۔
अरे ऐसे कैसे परेशान हो? मेरे ही आदमियों में कोई मुखबर छुपा बैठा है, मुझे इसका पता चले वरना हमारे लिए मजीद खतरनाक हो सकता है। नाना बी ने नफ़ी में सर हिलाते हुए मजीद परेशानी से कहा। मैंने भी ताईद में सर हिलाया और मैं इनके कंधे पर सर रख लिया। मिल जाएगा, देखिएगा, डोंट वरी। इसे कहते हैं अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मारना। मेरी मुखबिरी करने के बाद घर पहुंचा तो अली, रोहा, इफ़त चची और आबद चचा हमारी तरफ बैठे थे। मिठाई का बड़ा डब्बा खुला हुआ था और हंसी मजाक चल रहा था। मैंने घर पहुंचा तो सब पुरजोश अंदाज में मेरी तरफ मुतवज्जा हुए। अली मिठाई का डब्बा उठाए मेरे पास आया। वो बहुत खुश दिखाई दे रहा था। ये किस लिए है? मैंने हैरत से सबकी तरफ देखते हुए पूछा। लाउंज में सोफे पर बैठे तमाम नफूस के चेहरे खिल रहे थे। मेरी जॉब हो गई है, अली ने पूरी बतीसी निकालते बताया। वो शुरू से ही पढ़ाई का चोर था और अब भी वो पिछले 3 साल से ग्रेजुएशन में अटका हुआ था। आबी चचा के घर के हालात तो हमसे भी अबतर थे। तो ये बात वाकई खुशी की थी कि अली की जॉब हो गई। वाह, ये कब हुआ? कहाँ हुई जॉब? मैंने खुशी में गुलाब जामुन उठाई और पूरी की पूरी मुंह में रखी। सेठ ताज हमदानी के पास इसके खास बंदों में गुलाब जामुन मेरे हलक में फंस गई थी। ना निकल सकता था और ना उगल सकता था। ये कब और कैसे हुआ? मुझे तो भनक भी नहीं पड़ी थी। शायद आज सारा दिन बाहर गुजारा था, इसी दौरान ये सब हुआ होगा। पूरे 5 लाख तनख्वाह है, अली पुरजोश लहजे में बता रहा था। मुझे खांसी आने लगी। बमुश्किल गुलाब जामुन निकला। आंखें पानी से भर गई और अब मैं खूनख्वार नज़रों से सबकी तरफ देख रहा था, जबकि अब्बा अब आयत का तारीफनामा खोलकर बैठ गए थे। ये सब तो आयत बेटी की बदौलत है। कितना ख्याल है ना इसे हम सब का। पहले हादी और अब अली भी हमारे तो दिन फेर फेर दिए इस बच्ची ने। मैंने सबसे दांत पीछे पर खुद को रोक ना सका। हाँ, पूरे का पूरा खानदान हमदानी का गुलाम बन जाते हैं। आप और चचा क्यों घर बैठे हुए हैं? आप भी आयत से कहिए कि आपको भी एडजस्ट कर देगी। मैं तो कहता हूँ अम्मा को भी भेज दे हमदानी में लाश। पूरे का पूरा खानदान इनकी गुलामी करने लगते हैं। मैं चीख रहा था और सबके सब हक्का बक्का मेरा मुंह देख रहे थे। और फिर अब्बा ने होश में आने में पहल की। दिमाग ठीक है तुम्हारा? क्या उल फूल बके जा रहे हो? ये उल फूल नहीं है, ये सच है। वो हम सबको गुलाम बना रहे हैं। वो मुझ पर और अली पर ही क्यों मेहरबान है? अपने कज़न नज़र नहीं आते इसको? वो तो फर्स्ट कज़न है इसके। मैं नखुआ से नाक चढ़ाए कह रहा था। इसके अपने कज़न्स के हालात हमसे बहुत बेहतर हैं। वो अपना समझ कर रही है और तुम्हें गुलामी लग रही है। अब्बा पुरजोश लहजे में बोले। कह वो सही रहे थे। हामिद और आसिम चचा के हालात हम लोगों से बहुत बेहतर थे। मुनीब डॉक्टर बन गया था और मलिया की शादी कासिम चचा की बीवी ने अपने ख़ानदान में करवाई थी, जो जद्दी पुश्ती रईस थे। पर मैं वो सब जानता था जो ये लोग समझ नहीं पा रहे थे। लग जाएगा आप सबको पता वो ये सब क्यों कर रही है। मैंने दांत पीसे। मुझे पता है वो ये सब क्यों कर रही। रोहा ने किन से सबकी तरफ देखते हुए कहा। अब सब इसकी तरफ मुतवज्जा थे और मेरी तरफ देख रही थी। चंद सेकंड की खामोशी के बाद वो झिझकते हुए बोली। आयत हादी भाई को पसंद करती है, बल्कि इश्क करती है। सबके मुंह पर एक साथ खुल गए थे, लेकिन मेरी तेवरी चढ़ गई। रोहा 1 सेकंड के लिए रुक कर फिर बोल रही थी। वो हादी भाई से शादी करना चाहती है, लेकिन हादी भाई इनको पसंद नहीं करते। बस इसीलिए वो हम सब का दिल जीत रही है। रोहा सर नीचे झुका लिया और अब्बा अब मुझे यूं देख रहे थे जैसे पहले कभी ना देखा हो। मैंने गुस्से से घूर कर रोहा को देखा और फिर जोरों शोर से नफ़ी में सर हिला दिया। हरगिज़ नहीं। अगर वो ये सब चाहती है तो इसका ये ख्वाब सिर्फ ख्वाब ही रहेगा। आबी चचा जो कब से खामोश बैठे थे गुस्से में उठ खड़े हुए। बेटा, अगर इसने तुम लोगों के साथ साथ हमारे भी सरों पर हाथ रख दिया है तो तुम्हें किस बात की तकलीफ है? तुम्हें आयत पसंद नहीं तो ना सही, तुम इसकी मुलाजमत नहीं करना चाहते ना मत करो, लेकिन अली पर हुक्म मत चलाओ, इन्होंने गुस्से में कहा और फिर इफ़त चची को इशारा किया। चलो उठो सब। इससे बस ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि अली इसे अच्छी तनख्वाह कैसे लगाए। वो लोग एक एक करके उठकर चले गए। अब मैं इनको क्या बताता मुझे इन सब से और अली से कितना प्यार है। मैं इनको क्या बताता कि बहुत जल्द ताज हमदानी के तमाम छुपे गैर कानूनी काम में फाश करने में वाले हूँ। और अब मुझे अली की फ़िक्र रही थी, जिसे हमदानी ने अपने ख़ास बंदों में शामिल कर लिया था और मैं इसकी परसों की मुखबरी को कराया था। और अगर खुदा न खास्ता हमदानी ने अली को परसों इन ट्रकों को लोड करवाने के लिए भेज दिया तो क्या होगा? अब्बा, अम्मा और अक्सर भी मुंह नाक बसोड़े अपने कमरों में जा चल दिए थे और मैं सर थाम कर वहीं बैठ गया था। अब मैं अली को कैसे समझाऊं? मेरे ज़हन में अब इस बात के घंटे बज रहे थे। नाना भी मुझे फुटेज दिखा रहे थे और मेरा चेहरा जर्द हो रहा था। हादी इनके ऑफिस के दरवाजे के साथ कान लगाए खड़ा था। इतना ही नहीं, इस तरह के कितने ही फोटेज थे जिसमें वो अजीब मशकूक हरकतें करता नजर आ रहा था। कभी मोबाइल फ़ोन से वीडियो बना रहा था और कभी चोरी छुपे कुछ देख रहा था। ये सारी फोटेज हमदानी विलास के मुख्तलिफ CCTV से ली गई थी।
शायद वो इस बात से अनजान था कि हमदानी विलास में जगह जगह CCTV कैमरे नस्ब हैं। बताओ अब मैं क्या करूं? नाना भी जब से लब भींचे पूछ रहे थे और मैं थी के पटी पटी आंखों से सब देख रही थी। हादी, तुमने ऐसा क्यों किया आखिर? मैंने संजीदगी से नाना बी की तरफ देखा। लाडी, ऐसे मत देखो, तुम जानती हो इस जुर्म की कितनी बड़ी सज़ा है। वो बर्फीले लहजे में बोले। नाना बी, मैं हादी से बहुत मोहब्बत करती हूँ, इससे यकीनन भूल हुई है। मेरा लहजा धीमा था और मेरी आंखों में खौफ था। वो मेरे नाना थे, इतना तो मैं इनको जानती थी। इनके साथ गद्दारी की सज़ा मतलब अपनी ज़िंदगी तबाह कर लेना, और मैं हादी के साथ ऐसा होता हुआ नहीं देख सकती थी। मेरा दिल लर्जने लगा क्योंकि इस वक्त वो लॉन्च में बैठा मेरा इंतज़ार कर रहा था और मैं नाना बी के ऑफिस में ये फुटेज देख रही थी। नाना भी अब मुझे घूर रहे थे। लाडी, ये लड़का एतबार के काबिल नहीं है, वो परेशान लहजे में कहते अपनी कुर्सी से टेक लगा के। मैंने पहलू बदला और कुछ आगे झुककर इनके हाथ पर हाथ रखा। नाना भी, वो ऐसा नहीं है, प्लीज़ मेरी खातिर इसकी पहली गलती समझकर माफ़ कर दें। मैं इसे समझाऊंगी, वो आइंदा कभी ऐसी गलती नहीं करेगा। मेरा लहजा इल्तजाई था, लेकिन दूसरी तरफ नाना भी तो जैसे मेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं थे। मैंने इसे तुम्हारा गुलाम बनाना चाहा था, लेकिन यहाँ तो तुम इसकी गुलाम बन गई हो, वो गुस्से में बोल रहे थे। मैंने खफगी से इन्हें देखा और सीट से उठकर खड़ी हो गई। वो अब इंगश्त ताने मुझे कह रहे थे, देखो लाडी, बहुत हुआ, इस जुर्म की सज़ा मैं तय करूँगा। ठीक है, अगर हादी को कुछ हुआ तो फिर मेरी बर्बादी के जिम्मेदार भी आप ही होंगे। मैंने भी हतमी फैसला सुनाया और तेज़ तेज़ कदमें उठाती वहाँ से निकल आई। मैं जानती थी इनकी पुरसोच निगाहें मुझे घूर रही हैं और वो कभी ऐसा फैसला नहीं लेंगे। मैं लाउंज में बैठा था जब आयत गुस्से में बड़ी दंदराती हुई मुझ तक आई। मैंने हैरत से आंखें फैलाई, इसकी तरफ देखा। हादी, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, वो तासुफ से सर हिलाती कह रही थी। मैंने नासमझी के अंदाज में इसकी तरफ देखा और इससे पहले कि मैं अपनी जगह से उठता, सामने से सेठ हमदानी के 2 गुंडे गुस्से में भरे मेरी तरफ आते हुए नजर आए। मैं हैरान सा खड़ा हुआ और लंबे लंबे डंग भरते मुझ तक आए और मुझे दोनों तरफ के बाजुओं से पकड़कर झंझोड़ते हुए सेठ हमदानी के ऑफिस की तरफ ले जाने लगे। आयत पीछे से चीख रही थी, छोड़ दो इसे, प्लीज़ छोड़ दो, लेकिन शायद इसे भी किसी एक गुंडे ने थाम रखा था। मैं अब भी हैरान था कि आखिर हुआ क्या है। चंद मिनट के बाद मैं सेठ हमदानी के ऑफिस में इसके मेज़ के सामने खड़ा था और वो मुझे खूनख्वार नज़रों से घूर रहे थे। कल पुलिस स्टेशन में हमारे खिलाफ तुमने कॉल की थी, वो सख्त लहजे में मुस्तफसर हुए। मुझे आज पता चला कि सांस सूखना किसे कहते हैं। ताज हमदानी ने एक हाथ से अपने सामने पड़े लैपटॉप को घुमाया। लैपटॉप स्क्रीन घूम कर मेरी नज़रों के सामने आई और उसमें कल वाली फुटेज चल रही थी जिसमें सेठ हमदानी के ऑफिस के दरवाजे के साथ कान लगाए खड़ा था। इस हरकत का मतलब जानते हो? मैं क्या जवाब देता? मेरा तो सांस खुश्क था, बस पटी पटी आंखों से सामने देख रहा था। इतने में ऑफिस के एक तरफ का दरवाज़ा खुला और अब्बा हैरान परेशान से 2 आदमियों के साथ दाखिल हुए। मैंने सिर पिटाकर खौफजदा आंखों से ताज हमदानी की तरफ देखा, जो शैतानी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए मुझे ही देख रहे थे। आपने बुलाया सेठ साहब? अब्बा मौदबाना लहजे में पूछते चोर सी निगाह मुझ पर भी डाल चुके थे। यकीनन इनके दिल में भी कल वाली बातों का खौफ था और मैं तो खुद ब खुद खड़ा था और मेरी नज़रों में ही इसी उधेड़ उम्र बुजुर्ग का चेहरा और मैं तो दम बखुद खड़ा था और मेरी नज़रों में इसी उधेड़ उम्र बुजुर्ग का चेहरा घूमने लगा जिसको इसके बेटे की वजह से मार पड़ी थी। इसे बाहर ले जाओ ज़रा, मुझे जावेद साहब से अकेले में बात करनी है। ताज हमदानी ने मेरे तरफ इशारा किया और वो आदमी जो मेरे दाएं बाएं के सिर रिपोर्ट की मानद खड़े थे, एक बार में फिर मेरी बाहें दबोचे हुए बाहर लेके। मैं चीखना चाहता था, मेरे अब्बा को कुछ मत कहिएगा, लेकिन इससे पहले ही वो मुझे घसीटते हुए बाहर ले आए और फिर मेरे सर पर बंदूक तान ली। मैंने लब बींच कर हल्के हिलने की कोशिश की तो साथ खड़े आदमी ने मेरे बाजू को झटका देकर रोक दिया। मैं इस वक्त बेबस था, एक एक सेकंड मेरी धड़कन पर भारी था। मेरे अब्बा को अगर एक भी खरोंच आई तो मैं हमदानी के ही किसी गार्ड से बंदूक छीनकर इसके खोपड़ी उड़ा दूंगा। मैं हर गुजरते सेकंड के साथ एक नया मंसूबा तैयार कर रहा था। 15 मिनट के बाद अब्बा हैरत ज़दा से बाहर निकले। इनके निकलते ही गार्ड्स ने जल्दी से मुझे छोड़ दिया और बंदूक भी नीचे कर दी। मुझे पक्का यकीन था अब्बा अब मेरे पास आएंगे और एक झरनाटेदार थप्पड़ सीध करेंगे। मैं खुद को ज़हनी तौर पर तैयार ही कर रहा था कि अब्बा ने आकर मुझे गले लगा लिया। मैंने हैरत से गार्ड्स की तरफ देखा जो खबीसों की तरह मुस्कुरा रहे थे। अब्बा मुझसे अलग हुए और फिर मेरे दोनों बाजू थाम कर बोले, बेटा तू बहुत खुशकिस्मत है, ताज हमदानी तुझे अपना दामाद बनाना चाहते हैं। धड़ाम से कुछ मेरे सर पर आन गिरा। ताज हमदानी बहुत बड़ी गेम खेल गया था। इसने अब्बा को बुलाकर आयत के और मेरे रिश्ते की बात कर दी थी और मैं बुरी तरह फंस गया था। मैंने बेचारगी से अब्बा की तरफ देखा। चल अब घर चल, तेरी अम्मा को खुशखबरी देनी है। अब्बा ने मेरा बाजू थामा और मैं किसी बेजान लाशे की तरह इनके साथ घसीट रहा था। मैं बहुत बुरा फंसा था।
ابا کو یہاں بلا کر مجھے یہ دکھایا گیا تھا کہ وہ کر سکتا تھا، لیکن اس نے نہیں کیا۔ اور اگر میں شادی سے انکار کروں گا تو میرے ساتھ کیا ہوگا؟ میں حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات لیے کھڑی تھی، اور نانا ابا مجھے میری زندگی کی سب سے بڑی خوشخبری کے بارے میں بتا رہے تھے۔ جاوید انکل نے انہوں نے میری اور ہادی کی شادی کی بات کی اور وہ مان گئے، اور نہ صرف مانے بلکہ نانا بھی اگلے ہفتے میری اور ہادی کی نسبت کی ایک بہت بڑی تقریب منعقد کر رہے تھے۔ میں کچھ دیر یوں ہی حیرت زدہ کھڑی رہی اور پھر نانا ابھی کے گلے لگ گئی۔ وہ مسکراتے ہوئے میرے سر پر ہاتھ پھیر رہے تھے۔ میں جانتی تھی آپ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں اور ہادی کو معاف کر دیں گے۔ نہیں، معاف نہیں کیا، یہ اس کے لیے آخری وارننگ ہے۔ میں ان سے الگ ہوئی۔ وہ روب سے بول رہے تھے، ہاں لیکن اب اس نے ایسا کچھ بھی کرنے کی کوشش کی تو وہ بچ نہیں سکے گا، لیکن اب وہ ایسا نہیں کرے گا، مجھے یقین ہے۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا اور میں گلنار ہو گئی۔ ہادی وہ مان گیا؟ میں نے ڈرتے اور جھجکتے ہوئے پوچھا۔ میرے دل میں اب بھی یہی ایک ڈر تھا، اس کا تو باپ بھی مانے گا۔ نانا ابی نے مسکراتے ہوئے وثوق سے کہا، میرے دل کو جیسے سکون مل گیا۔ گھر میں تو جیسے جشن کا ماحول بن گیا تھا۔ ابا نے ہمدانی ولا سے لوٹتے ہی میری اور آیت کی شادی کی خبر خاندان بھر میں یوں نشر کی جیسے لاٹری کا ٹکٹ نکل آیا۔ ویسے یہ میرے گھر والوں کے لیے لاٹری کے ٹکٹ سے کم نہیں تھا، لیکن میری زندگی کی جو بینڈ بج چکی تھی، میں وہ سب گھر والوں کو سمجھانے سے پہلے صبور سے کہنا چاہتا تھا کہ، اور یہ ایسی خبر تھی کہ میں جسے فون پر نہیں بتانا چاہتا تھا۔ اس لیے میں نے صبور کو اس کی اور میری مشترکہ دوست نیلم کے گھر ملنے کے لیے بلایا۔ نیلم میری ہم جماعت تھی، لیکن میری وجہ سے اس کے صبور کے ساتھ بہت گہری دوستی ہو گئی تھی۔ میرے گھر میں اس وقت سب اکٹھے تھے اور مٹھائیاں کھائی جا رہی تھی، اور میں گھر میں کسی کو بھی بتائے بغیر بنا بائک لیے نیلم کے گھر کی طرف نکل پڑا۔ کچھ دیر بعد ہی میں نیلم کے ڈرائنگ روم میں صبور کے ساتھ مجرموں کی طرح سر جھکائے بیٹھا ہوا تھا۔ ہادی کیا ہوا ہے؟ ایسے کیوں بیٹھے ہو؟ کچھ بولو پلیز، مجھے پریشانی ہو رہی ہے۔ وہ کچھ دیر میں میرے بولنے کا انتظار کرنے کے بعد اضطرابی لہجے میں بولی۔ میں نے ایک آئی برو اچکاتے اس کے پریشان چہرے کی طرف دیکھا اور پھر گہری سانس اندر ڈیلتے ہوئے ہمت مجتمع کرتے ہوئے بولا، صبور، سیٹھ ہمدانی نے میرے لیے آیت کا رشتہ بھیجا ہے۔ میں نے ایک ہی سانس میں پورا جملہ بول دیا، اور سامنے بیٹھی صبور کا تو جیسے سانس ہی اٹک گیا۔ اس کے چہرے کی رنگت پل بھر میں ہی پھیکی پڑ گئی۔ میں آہستہ آہستہ اسے سب بتاتا چلا گیا، اور اس کا چہرہ پہلے زرد ہوا اور پھر لٹھے کی مانند سفید ہو گیا۔ صبور پلیز، تم ایسے دل چھوٹا مت کرو۔ میں یہ سب تمہیں پریشان کرنے کے لیے نہیں بتا رہا تھا، میں تو یہ چاہتا ہوں تم اس پل میں میرے ساتھ دو۔ میں نے بے چارگی سے کہا، میں کیا ساتھ دوں؟ اس کا لہجہ اتنا ٹوٹا ہوا تھا کہ میں ایک پل کے لیے ساکن ہو گیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے واقعی سب ختم ہو گیا، اور پھر اس کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ صبور، میں صرف تم سے محبت کرتا ہوں، اور شادی بھی صرف تم سے ہی کروں گا۔ میں فوراً اسے تسلی دی۔ اس نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا اور سلگتی نگاہوں مجھ پر جماتے دانت پیسے۔ بس کر دو ہادی، بس کر دو اب، تم کچھ نہیں کر سکتے۔ تمہاری شادی آیت سے ہو رہی ہے اور یہی حقیقت ہے۔ وہ پھر سے سر جھکائے رونے لگی۔ میں اس کی حالت سمجھ سکتا تھا، اس لیے کچھ دیر خاموش رہا اور اسے رونے دیا۔ وہ چند منٹ رونے کے بعد شکوہ بھری نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں بس خاموش بیٹھا اس کی طرف ہی دیکھ رہا تھا، اور جب نگاہوں کا تصادم ہوا تو میں زخمی سا مسکرا دیا۔ یقیناً میری مسکراہٹ نے اسے موم کر دیا۔ ہادی، بس اب ایک ہی حل ہے، تم گھر والوں کو میرے بارے میں بتا دو۔ وہ اب رونا بھول گئی تھی اور پورے حق سے مجھے مشورہ دے رہی تھی۔ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی، اس معاملے میں مجھے ڈر کر اسے نہیں کھونا تھا۔ نہیں، میں ہمدانی کو ہی بتا دوں گا کہ میں یہ شادی نہیں کر سکتا، کیونکہ میں ان کی پوتی کو نہیں کسی اور کو پسند کرتا ہوں، میں نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ مجھے اس کے حوصلے نے حوصلہ دیا تھا اور ایک موہوم سی امید جاگی تھی۔ جب میں ہمدانی کو یہ بتاؤں گا کہ میں آیت کو نہیں کسی اور کو پسند کرتا ہوں، یقیناً وہ یہ بات سمجھ جائے گا۔ ایسی شادی کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور تمہارے گھر والے جو اتنے خوش ہیں؟ صبور نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ وہ اب بھی ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ یہ میری زندگی ہے، میری خوشی زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اور میری خوشی تم سے ہے، میں نے پورے وثوق سے کہا تو وہ پرسکون ہو کر مسکرا دی، اور میں ایک نیا عزم لیے گھر واپس لوٹ آیا۔ میں بہت خوش تھی کہ میری خواہش، میری محبت مجھے اس قدر آسانی سے مل رہی ہے۔ میں ہواؤں میں اڑتے ہوئے یہ سوچ رہی تھی کہ اب وہ دن دور نہیں جب ہادی مجھ سے محبت کرنے لگے گا، اتنی محبت جتنی میں اس سے کرتی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے وہی چمک ہوگی جو اسے دیکھ کر میری آنکھوں میں ہوتی ہے۔ ہادی کی غلطی معاف کر کے نانا ابی نے ایک بار پھر میرا دل جیت لیا تھا، اور اب مجھے لگنے لگا تھا میری زندگی میں جتنی بھی خوشیاں آئی ہیں وہ صرف میرے نانا ابی کی بدولت ہے۔ میں اب ہر فکر سے آزاد تھی، بس ایک چھوٹی سی چبھن برقرار تھی کہ ہادی اس رشتے کے لیے باخوشی راضی ہو گیا ہے۔ فی الحال تو مجھے بہت کچھ کرنا تھا، اور سب سے پہلے تو اسلام آباد جانا تھا، نانی سے ملنا تھا، اپنی دوستوں سے ملنا تھا کہ کچھ بزنس اور یونیورسٹی کے کام پینڈنگ تھے۔ میں پیکنگ میں مصروف تھی جب روحا کی کال آئی۔ میں نے حیرت سے فون کی طرف دیکھا۔
اقرا کے سسرال کی انفارمیشن لینے کے بعد میں نے کچھ کبھی اس سے بات ہی نہیں کی تھی۔ میں نے فون اٹھایا اور کان سے لگایا۔ ہیلو بھابھی جی، کیسی ہیں؟ وہ چہک رہی تھی اور اس کا یوں بھابھی کہنا مجھے بہت بھلا لگا تھا۔ میں مسکراتی، ٹھیک ہوں، تم سناؤ کیسی ہو؟ ارے ہم کیا سنائیں، بس ہر جگہ آپ کا ہی شور ہے۔ ہاں ہاں، وہ کیسے؟ بھائی یہاں تو شادی کی خوشی میں ہنگامہ کھڑا ہے۔ سچ بتاؤں تو میں بہت خوش ہوں، عشق میں کامیاب وہ بھی اتنی جلدی عشق میں کامیاب ہو گئی، وہ بھی اتنی جلدی، واہ بھائی واہ، وہ اپنی لے میں کہہ رہی تھی اور میرے گال کے گھڑے گہرے ہو رہے تھے۔ تم خوش ہوگی اس کا تو مجھے یقین ہے، مجھے تو ہادی کا بتاؤ، وہ خوش ہے کیا؟ میں نے جھجکتے ہوئے اپنے دل کی بات پوچھی۔ ہادی بھائی؟ ارے وہ تو کل شام سے شرما کر کمرے سے ہی نہیں نکل رہے۔ خوش کیوں نہ ہوں گے، بھلا آپ جیسی پیاری بیوی مل رہی ہے، اور کیا چاہیے ہے؟ میں اس کی بات پر واقعی بلش کر رہی تھی۔ وہ اب ہر فرد کی خوشی کے بارے میں تفصیل سے بتا رہی تھی اور میرے دل کو جیسے ایک بات نے پرسکون کر دیا تھا کہ ہادی شادی کے لیے راضی ہے، اور میرا ذہن ان کے انکہے خواب پرونے لگا تھا۔ ایک نئے صبح پر ایک نیا عملیہ۔ میں خلاف توقع آج جلدی ہمدانی ولاس میں موجود تھا۔ میں جانتا تھا سیٹ ہمدانی اس وقت جاگنگ سے واپس آتا ہے اور آیت اس وقت سو رہی ہوتی ہے، اس لیے یہی وہ صحیح وقت تھا جب میں سیٹ سے بات صاف کر سکتا تھا۔ میں صوفے پر مضطرب سا بیٹھا، پاؤں کو زمین پر ٹپ ٹپاتے ہوئے جملوں کو پرو رہا تھا، جب ہمدانی اپنے 3 گارڈز کے ہمراہ ہال میں داخل ہوتا ہوا نظر آئے۔ میں تیر کی طرح اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ہمدانی مجھے دیکھ کر ایک پل کے لیے ٹھٹکا اور پھر ہاتھ ہوا میں ہلاتے ہوئے روکھے سے لہجے میں کہا، آیت اسلام آباد گئی ہے، تمہیں چھٹی ہے آج۔ میں متذبذب سا چند قدم آگے بڑھا اور اس کے گارڈز کو چور نگاہوں سے دیکھتے ہوئے مدعا پیش کیا، میں یہاں آپ سے بات کرنے آیا ہوں۔ سیٹ ہمدانی نے ابرو اچکاتے ہوئے ایک نگاہ مجھ پر ڈالی اور پھر گہری سانس خارج کرتے ہوئے اسی روکھے لہجے میں حکم دیا، بولو کیا کہنا ہے؟ آپ سے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ میں نے کچھ جھجکتے ہوئے اس کے دائیں بائیں کھڑے کارڈز کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، وہ میری بات سمجھ گئے؟ اس نے ایک ہاتھ کا اشارہ کیا اور گارڈز تیز تتر بتر ہو گئے۔ پھر اس نے مجھے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی سگار سلکاتا دوسرے صوفے پر براجمان ہو گیا۔ میں اب اس کے سامنے بیٹھا تھا اور اپنے حواس مکمل طور پر بلند کر چکا تھا۔ بولو کیا کہنا چاہتے ہو؟ سیٹ ہمدانی سگار کا کش لگاتے ہوئے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ میں نے جو بھی کیا میری بے وقوفی تھی، میں اپنی غلطی پر شرمندہ ہوں اور یقین دلاتا ہوں کہ آئندہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ میں نے معافی کی صورت تمہید باندھی، کیونکہ جو کچھ میں کہنے جا رہا تھا اس سے پہلے اس سب کی وجہ کے لیے معافی مانگنی ضروری تھی۔ معاف کیا ہے تو داماد بنا رہا ہوں، سیٹ ہمدانی نے ترکی بترکی جواب دیا۔ میں نے فوراً گڑبڑا کر نفی میں سر ہلایا۔ میں آپ سے اسی سلسلے میں بات کرنے حاضر ہوا۔ دراصل میں یہ شادی نہیں کر سکتا ہوں۔ گویا میں نے کوئی بم پھوڑا تھا۔ سیٹ ہمدانی کا چہرہ یک لخت سرخ ہوا تھا۔ کیوں نہیں کر سکتے ہو؟ کیا کمی ہے میری آیت میں؟ نہیں، ایسی بات نہیں، آیت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ میں اس کے غصے سے گڑبڑا گیا تھا۔ تو کیا پھر تم میں کوئی کمی ہے؟ ہمیں ہر کمی منظور ہے۔ سیٹ ہمدانی مجھ سے ایسی بات کر رہا تھا جیسے مجھے خرید رہا ہو۔ میرے اندر خودداری کا ایک ابال سا اٹھا اور میں پیشانی پر بل ڈالے روب سے سب کہہ گیا، نہیں، مجھ میں بھی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن میں آیت کو پسند نہیں کرتا ہوں۔ کسی اور کو پسند کرتے ہو؟ سیٹ ہمدانی نے بھویں سکیڑ کر استفسار کیا۔ میں ایک پل کے لیے چپ ہوا، لیکن اگلے ہی پل اس بات میں سر ہلا دیا، صرف پسند نہیں، محبت کرتا ہوں۔ وہ اب یوں بیٹھا تھا جیسے کہ مجھے کچا چبا جائے گا، لیکن اس کا یہ غصہ بجا تھا۔ میں اب خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ وقتی غصہ ہے، لیکن میری تو جان چھوٹ رہی ہے۔ میں نے سر دھیرے سے جھٹکا تھا۔ کون ہے وہ؟ اس کا اگلا سوال بالکل غیر متوقع تھا۔ میں نے پہنچکا کر اوپر دیکھا۔ لڑکی۔ میں نے تھوک نکلا، اب بھلا میں اسے صبور کے بارے میں کیوں بتاتا؟ وہ تو مجھے بھی پتا ہے، شریف ہو لڑکی ہی پسند ہوگی، لڑکا تو نہیں ہو سکتا۔ میں یہ پوچھ رہا ہوں کون ہے وہ، کیسے محبت ہوئی؟ میں اس کے سوالات پر بری طرح جذب ہوا۔ گھبراؤ نہیں، سمجھ سکتا ہوں، جوان خون ہو اور آیت بھی تو اتنے سال تم سے دور رہی ہے، تو کسی اور سے محبت ہونا نیچرل ہے۔ اچانک اس کے لہجے کی نرمی نے مجھے پرسکون کر دیا۔ میں نے جبراً مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا، کیسی ہوئی محبت؟ وہ پھر سے سوال پر آ گیا، لیکن اب کی بار انداز بہت دوستانہ تھا۔ میں نے سکا سانس لے کے سیٹ کے موٹے دماغ میں اتنی عقل تو ہے کہ اگر میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں تو آیت کو کیسے خوش رکھ سکتا ہوں؟ یونیورسٹی میں دوست تھی، پھر محبت ہوگی۔ میں نے مختصراً جواب دیا۔ تاج ہمدانی نے کہکا لگایا، ہاں ہاں، ہو جاتی ہے ایسی محبت۔ میرے لیے تو راوی چین ہی چین لکھنے لگا۔ میں بے حد پرسکون ہو کر مسکرا دیا۔ جی، اسی لیے آپ سے بات کرنے آیا ہوں کہ آپ سمجھ سکتے ہیں میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں تو آیت کو کیسے خوش رکھ سکتا ہوں۔ میں نے بہت نرم لہجے میں اپنی بات کو مکمل کیا۔ تاج ہمدانی بہت زور سے اس بات میں سر ہلا رہا تھا۔ بالکل بالکل صحیح کہا تم نے،
अच्छा फिर नाश्ता करके जाना। आए तो अब कुछ दिन इस्लामाबाद में ही रहेगी। वो अपनी जगह से उठा तो मैं भी इसके साथ खड़ा हो गया। वो मेरे करीब आया, मेरे कंधे पर हाथ रख के गंभीर लहजे में बोला, चलो जाओ, खुश रहो। मुझे इसकी दुआ हरगिज़ ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैं जबरन मुस्कुराया और उसके जाने के बाद एक सुख की गहरी सांस खारिज कर और सर झटकर बैरूनी दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा दिया। मैं इस बात से बिल्कुल अनजान था कि मेरा हर बढ़ता कदम मेरी ज़िंदगी में और मुश्किलात लाने का सबब बनने जा रहा है। आज के दिन से पहले तक मैं एक आम इंसान था, जिसके आम से ख्वाब थे डट कर पढ़ना, अच्छी जॉब हासिल करना, पसंद की लड़की से शादी करना और फिर सारी उम्र इसके साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारना। लेकिन ज़िंदगी मुझसे इम्तिहान लेना चाहती थी। इस्लामाबाद आए मुझे आज दूसरा दिन था। यहाँ बहुत से काम वैसे के वैसे ही रखे हुए थे। हादी ने ज़िंदगी का रुख एकदम से अपने ऐसे बदल दिया था कि मैं अपनी ज़िंदगी को जैसे पॉज करके लाहौर चली गई थी। और अब कल पूरा दिन मुख्तलिफ कामों में गुजरा। यूनिवर्सिटी, ऑफिस, दोस्तें, नानी और फिर बाकी के सब काम निपटाते निपटाते कब पूरा दिन गुजर गया मुझे होश ही नहीं रहा। आज मैं सुबह से हादी की कॉल कर रही थी, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रहा था। इसीलिए मैंने नाना अभी को फ़ोन किया। मैं इस वक्त ऑफिस में थी और एक मीटिंग के बाद फ्री हुई थी। कैसे हैं आप? मैंने लैपटॉप बंद करते हुए पूछा। ठीक हूँ लाडी, बताए कैसी है? कितने काम निपट गए? इन्होंने हमेशा की तरह खुशदिली से पूछा। मैंने सीट की पुश से सर टिकाया और कुर्सी को घुमाते, जी नाना भी तकरीबन। आप बताएं सब ठीक? इधर हादी कैसा है? ऑफिस आ रहा है ना? मैंने छूटते ही हादी के बारे में पूछा। चंद सेकंड की खामोशी के बाद वो पुरसकून लहजे में बोले, हादी को मैंने छुट्टियां दे दी हैं। क्यों? मैंने हैरत से पूछा और सीधी हुई। मैंने सोचा शादी की तैयारियां कर ले। लगता है जल्दी शादी करनी पड़ेगी। नाना अभी की बात पर मेरी मुस्कुराहट गहरी हो गई। क्यों इतनी जल्दी क्यों? अरे मुझे जल्दी नहीं है, लगता है हादी को बहुत जल्दी है। नाना अभी की इस बात पर मैं गुलाल हुई, जैसे सारे जिस्म का खून सिमट कर चेहरे पर आ गया हो। लेकिन दिल में एक खटक बरकरार थी कि मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा। आपसे हादी ने कुछ कहा? नहीं कहा तो नहीं है, लेकिन अंदाज़ा हो जाता है। खैर तुम तसल्ली से अपने काम करो, हादी को मैं देख लूँगा। इस मामले में तुम्हें परेशान होने की कतई ज़रूरत नहीं। इन्होंने मुझे तसल्ली दी, लेकिन मेरे दिल में अभी भी वहम था। मैंने मज़ीद इनसे कुछ ना कहा, क्योंकि मैं चंद दिन में काम ख़त्म करके लाहौर वापस जाना चाहती थी। ओके, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। मैं बस ये चाहती हूँ शादी बाबा के आने पर हो। मैंने अपनी ख्वाहिश जाहिर की तो वो हंस दिए। बिल्कुल, वो भी आ जाएगा, बेफिक्र हो। चलो फिर बात होती है। इनके फ़ोन बंद करने के बाद मैं फिर से हादी का नंबर मिला रही थी, लेकिन वहाँ घंटी तो जाती थी, लेकिन कोई फ़ोन नहीं उठाता था। कब तक ये सब करोगे हादी? जावेद उमर, बहुत जल्द तुम मेरे होगे। मैंने खुद साख्ता सरगोशी की और गहरी सांस लेते हुए मुस्कुरा दी। आंखें मूंदी तो छन से मेरे जहन के पर्दों पर था। मेरी आंख फ़ोन की घंटी पर खुली थी। पिछले 2 दिन से मैं ज़िंदगी जी रहा था जो मैं जीना चाहता था। आयत का प्रपोजल मैं हमदानी के मुंह पर मार आया था और बहुत सी कंपनीज में मुलाजमत के लिए अप्लाई भी कर चुका था। घर वालों को मैंने सबूर के बारे में तो नहीं बताया। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर बताती मैं आयत के रिश्ते से इनकार कर आया और अब मैं वहाँ मुलाजमत के लिए भी नहीं जाऊँगा। तवक्का के ऐन मुताबिक सबके चेहरे लटक गए थे और पिछले 2 दिन से कोई भी सीधे मुंह मुझसे बात नहीं कर रहा था। लेकिन मुझे इस सब की कोई परवाह नहीं थी। मैं जल्द अज जल्द कोई अच्छी मुलाजमत तलाश करने के बाद सबूर के घर रिश्ता भेजना चाहता था। फ़ोन की घंटी मुसलसल बज रही थी और मैंने कसलबंदी से आंखें खोलकर इस गर्ज से फ़ोन उठाया कि दूसरी तरफ यकीनन सबूर होगी, क्योंकि मैंने रात में इससे बात नहीं की थी। मैंने फ़ोन उठाकर नज़रों के सामने किया और इसका नाम चमकते देखकर मुस्कुरा दी। फ़ोन उठाया और कान से लगा लिया। हादी। सबूर की सहमी सी भारी आवाज़ एक पल में मेरी आंखें सुखेड़ गई और नींद का खुमार एक झटके से उतर गया। क्या हुआ सबूर, रो क्यों रही हो? मैं परेशान लहजे में इस्तफसार करने लगा। हादी, सेठ हमदानी के गुंडे रात हमारे घर आए थे। मैं उछल कर बैठा, दिमाग में स्टॉक से पटाखे फूटने लगे। दिल पर तो जैसे किसी हाथी ने पाँव रख दिया था। क्या? हल्क से चीख नुमा आवाज़ बरामद हुई। शदीद हैरत से आंखें फटने को थी, जबकि सबूर रोते हुए सब बता रही थी। सेठ हमदानी के गुंडों ने न सिर्फ सबूर का सुराग लगा लिया था, बल्कि इसके घर में घुसकर इसके अब्बा को धमकाया था कि अपनी बेटी को समझाए कि वो हादी से दूर रहे। वो सेठ हमदानी का होने वाला दामाद है। सबूर के घर में एक हंगामा हो गया था। सबूर के पापा ने इसे सख्ती से मना कर दिया था कि वो आज के बाद हादी से मिलना तो दूर की बात, इसे सोचेगी भी नहीं। हादी बाबा ने मेरा मोबाइल भी छीन लिया था। ये अब मैंने बहुत मिन्नत समाजत के बाद लिया है। मैंने इनसे वादा किया है कि मैंने तुमसे अब कोई ताल्लुक़ नहीं रखूँगी। मेरा खून खोल रहा था, लेकिन इसकी ताल्लुक़ ख़त्म करने वाली बात पर तो जैसे मेरा सांस खुश्क हो गया। हमारी कहानी इतनी आसानी से ख़त्म नहीं हो सकती थी।
सबूर, सबूर प्लीज़, मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ आज और अभी। मैंने दो टोक लहजे में बिना सोचे समझे अपना फैसला सुनाया। नहीं, बाबा बहुत गुस्से में है। वो बड़े बहुत डरी हुई थी, लेकिन ये वो लम्हा था, अगर मैं पीछे हो जाता तो शायद मेरे दिल में हमेशा के लिए ये कसक बाकी रह जाती कि मैंने इसे पाने की हर मुमकिन कोशिश नहीं की थी। सबूर, कुछ नहीं होगा, मैं अंकल को सब समझा दूंगा, प्लीज़ मैं आ रहा हूँ। मैं खुद पर तानी चादर एक झटके से हटाता अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। नो नो प्लीज़ हादी, मेरी ज़िंदगी को मज़ीद मुश्किल मत बनाओ। वो रोते हुए इल्तिजाई लहजे में कह रही थी। चुप, बिल्कुल चुप, वेट करो, मैं आ रहा हूँ, मैंने रोब से कहा और फिर करीबन भागता हुआ वॉशरूम में घुस गया। बहुत बहुत बड़ी गलती हुई थी। मुझे सेठ हमदानी के स्ट्रॉन्ग नेटवर्क का अंदाज़ा तो था, लेकिन अब यकीन हो चला था। यकीन होते ही जैसे मेरी बैंड बज गई थी। मैं नहीं जानता था अब मैं क्या करने वाला हूँ, लेकिन जो कुछ भी कर रहा था खुद ब खुद हो रहा था और सबूर के लिए हो रहा था। मैं पूरे 1 घंटे के बाद सबूर के घर इसके बाबा के सामने बैठा था। इस होलनाक खामोशी को मुसलसल 10 मिनट गुजरे थे जब मैंने बात शुरू की। अंकल, मैं कल रात वाले वाक़ये के लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ। सबूर के वालिद ने सिर्फ मुझे घूरने पर इत्तफाक किया। मैंने एक चौड़ निगाह पर्दे की ओर में छुपी सबूर पर डाली, जो छुप कर हमारी बातें सुन रही थी। सबूर के अब्बा की नज़रें तो मुझे शर्मिंदा कर रही थी। ये सब मेरी वजह से था। ये बात मुझे अंदर ही अंदर काट रही थी। मैंने अपनी शर्मिंदगी को कम करने के लिए फिर से कलाम का सिलसिला जोड़ा। अंकल, मैं घुमा फिराकर बात नहीं करूंगा, सीधी बात करूंगा। मैं और सबूर पिछले 3 साल से एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और मैं सबूर से शादी करना चाहता हूँ। मैं सर झुकाए अपनी जोन में बोल रहा था जब इन्होंने रूखे लहजे में मेरी बात काटी। और तुम्हारे माँ बाप तुम्हारा रिश्ता सेठ हमदानी के घर तय कर चुके हैं, है ना? मैंने चौंक कर सर ऊपर उठाया। वो जब से लब बिंचे बैठे थे, लेकिन आंखों में गजब का गुस्सा था। सबूर के वालिद इसे बहुत मोहब्बत करते थे। इनका ख़ानदान इतना वसी और रीज़ नहीं था। पहले वो सिर्फ सबूर और हन्नान को पढ़ाने की खातिर लाहौर में आए थे। देखो बरखुरदार, मैं एक गरीब आदमी हूँ, 2 ही बच्चे हैं, जिसमें से सिर्फ एक बेटी ही है जिससे मेरी सारी उम्मीदें जुड़ी हुई। मैं अपने बेटे के हाथों पहले से ही बहुत परेशान हूँ। मुझे मज़ीद परेशान मत करो, वो उकताहट भरे लहजे में कह रहे थे। हन्नान नशे की लत में बुरी तरह गिरफ्तार था और सबूर के वालिद इसके इलाज में गर्क, जबकि वालदा अकलौते बेटे के गम में बीमार रहती थी। सबूर ठीक कहती थी, इनके घर के हालात ख़राब थे, लेकिन इतने ख़राब थे ये वो मुझसे हमेशा छुपाती थी। मैंने बेचैनी से पहलू बदला और पुरएतमाद लहजे में बोला, मैं भी आपका बेटा हूँ अंकल, आपकी हर परेशानी में समझ सकता हूँ, लेकिन आप नहीं जानते मैं सबूर से किस हद तक मोहब्बत करता हूँ। वो एकदम तड़क कर बोले, क्या करोगे इस मोहब्बत का जिसका अंजाम ही खौफनाक हो? तुम शायद सेठ ताज हमदानी को जानते नहीं, या फिर जानबूझकर अनजान बन रहे हो। इसने अभी तुम्हारी मोहब्बत के दावे करने पर ही गुंडे धमकाने के लिए भेज दिए। कल क्या करेगा? मैंने गहरी सांस बाहर उंडेली, एक निगाह सबूर पर डाली और रो देने को थी, और मैंने इसके लिए यहाँ हर किस्म की सख्ती और तजलील बर्दाश्त कर सकता हूँ। मैंने एक बार फिर नरम लहजे में तसल्ली दी, कुछ भी नहीं कर सकेगा, आप डरिए मत। लेकिन वहाँ सबूर के वालिद तो मेरी कोई बात समझने के लिए तैयार ही नहीं थे। डरिए मत बेटा, बेवकूफ़ किसी और को बनाना। वैसे भी मैं अपने बेटे के इलाज के लिए कराची शिफ्ट हो रहा हूँ। हम लोग सिर्फ सबूर के पेपर्स तक रहे हुए थे, लेकिन अब मैंने रात ही फैसला कर लिया, मैं कल ही कराची के लिए रवाना हो रहा हूँ। मैं गड़बड़ा गया। अंकल प्लीज़ आप एक दफ़ा मुझ पर भरोसा करके देखें, मैं खुद इस शहर से बहुत दूर जाना चाहता हूँ। मुझे अच्छी जॉब मिलते ही मैं सबूर को भी अपने साथ ले जाऊँगा। इससे पहले कि मैं मज़ीद कुछ कहता, सबूर पर्दे की ओर से निकल कर सामने आई और वाजिद साहब के कदमों में बैठ गई। बाबा, मैं हादी से बहुत मोहब्बत करती हूँ, हादी बहुत अच्छा इंसान है, आप इसकी बातों पर यकीन करें। वो आप बेचारगी से सबूर की तरफ देख रहे थे। बेटी की मोहब्बत हमेशा कमज़ोर कर देती है, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरी और सबूर की 2 घंटे की बहस के बाद वो इस बात पर राज़ी हो गए कि हादी सबूर से आज शाम को ही मंगनी करेगा, जिसमें इनके 2-4 जानने वाले शामिल होंगे। फिर वो हन्नान को और इसकी वालदा को लेकर कराची रवाना हो जाएंगे, और सबूर अपने इम्तिहानात के बाद वहाँ आ जाएगी और वहीं पर निकाह करेंगे, और तब तक हादी भी अपने घर वालों को राज़ी कर लेगा। मैं सबूर के घर से निकला तो बोझल सा था, क्योंकि ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैं अपने घर वालों से छुप कर कुछ कर रहा था। इन्हें समझाना बहुत मुश्किल था, और हालात इस सब की इजाज़त नहीं दे रहे थे। ठीक शाम 5 बजे मैं सबूर के घर में मौजूद था। मैंने एक बहुत ही खूबसूरत वाइट गोल्ड की अंगूठी ले ली थी। अंगूठी लेने में मेरी मदद नीलम ने की थी। ये बहुत ही खूबसूरत एक नगीने वाली अंगूठी थी, जिसका ज़ायरीन बहुत खूबसूरत था।
सबूर के घर का ये छोटा सा ड्राइंग रूम अब मोहल्ले के चंद लोगों से भरा हुआ था। नीलम ने भी हमारी मंगनी में शिरकत की थी और अब वही सबूर को कंधे से थामे बाहर ला रही थी। सादा सी गुलाबी सूट में मलबूस वो हमेशा की तरह सादगी में भी मेरे दिल को तड़का रही थी। चंद सेकंड के बाद ही वो मेरे पहलू में बैठी थी। इस खूबसूरत लम्हे में मेरी सारी परेशानी हवा हो गई थी। मैंने अपने नाम की अंगूठी सबूर को पहनाकर अपने नाम कर लिया था। मैं करीबन 12 बजे सोकर उठा था। कमरे से बाहर आया तो खिलाफ मामूल खामोशी थी, वरना तो इस वक्त अब्बा ऊंची आवाज़ में टीवी लगाए लाउंज में बैठे होते थे। मैं मतलाशी निगाहों से इर्द गिर्द देखता हुआ किचन की तरफ आया। सबूर से मंगनी के बाद आज तीसरा दिन और इन 3 दिनों में मैंने 2 जगह इंटरव्यू भी दिए थे। सबूर के वालिदैन कराची जा चुके थे और वो इम्तिहानात देने के लिए नीलम के घर रुक गई थी। वैसे तो इसे हॉस्टल में रुकना था, लेकिन नीलम और मेरे इसरार पर इसने नीलम के घर रुकने का फैसला लिया। वैसे भी नीलम के घर इसके वालदा के अलावा कोई नहीं होता था। इसने सबूर के वालिद को भी कोई एतराज़ नहीं था। मैं बस अब जल्द अज जल्द कोई अच्छी मुलाजमत तलाश करना चाहता था और इसी तगदो में लगा हुआ था। किचन में अम्मा मामूल के कामों में लगी हुई थी। ये अब्बा कहाँ हैं आज? मैंने फ्रिज खोलते हुए सरसरी लहजे में कहा। सेठ हमदानी की तरफ गए हैं। मैं जो पानी की बोतल को मुंह से लगाए खड़ा था, एकदम से पानी हलक को जा लगा। अम्मा पलटकर गुस्से से मुझे घूरने लगी और मैं बुरी तरह खांस रहा था। वह मुश्किल इस खांसी के दौरान मैंने गुस्से से पूछा, वो क्यों गए हैं वहाँ? मैं बता चुका हूँ ना, मैं शादी से इनकार कर आया हूँ और अब जॉब भी नहीं करनी वहाँ। वो नहीं गए। सेठ हमदानी की गाड़ी इन्हें लेने के लिए आई थी। मेरे तो तोते उड़ गए। किस लिए? अब्बा मुझसे तो बात करते। क्या बात करते? तुम सो रहे थे और सेठ हमदानी ने पैगाम भेजा था कि सिर्फ तुम्हारे अब्बा से ही काम है। अम्मा काम में मसरूफ इंतहाई पुरसुकून लहजे में बता रही थी और मेरे जहन में खतरे के अलार्म बजने लगे। मैं बेचैन सा कमरे से बाहर निकल आया। अब्बा का नंबर लगाया, लेकिन इन्होंने काट दिया। अब मेरी परेशानी मजीद बढ़ गई। इसी मुस्तरब हालत में टीवी के सामने बैठे मुझे 1 घंटा गुजर गया। अब दोपहर का 1 बज रहा था जब मेरे फ़ोन की घंटी बजी। मैंने उजलत में फ़ोन उठाया। नीलम का नंबर था। मैंने कॉल उठाई और फ़ोन कान से लगाया। हेलो हेलो हादी, मैं बहुत परेशान हूँ। सबूर आज यूनिवर्सिटी से वापस नहीं आई। इसे पेपर देकर 11 बजे तक आ जाना था, लेकिन अब 1 बज रहा है और इसका फ़ोन भी बंद जा रहा है। नीलम की बात ने मुझे जैसे मेरे औसान खता कर दिए। तुम फ़ोन बंद करो, मैं देखता हूँ। मैंने इसके फ़ोन बंद होते ही जल्दी से सबूर का नंबर लगाया, लेकिन दूसरी तरफ फ़ोन बंद था। मैं हड़बड़ाकर उठा और भागकर अपने कमरे में पहुंचा। मैं इस वक्त नाइट ट्राउज़र टी शर्ट के साथ चप्पल पहने हुए था और अपनी हालत से यकसर बेखबर। मैं चंद सेकंड के बाद मोटरसाइकिल पर सवार सड़क पर था। यूनिवर्सिटी के आधे घंटे का सफ़र मैंने 15 मिनट में तय किया। दिल बार बार ये दुआ कर रहा था कि सबूर किसी इजाफी काम के लिए यूनिवर्सिटी में ही हो। मंगनी के बाद से एहतियातन मैं इसे मिलने यूनिवर्सिटी नहीं आता था और आज 3 दिन बाद मैं इसे खोजने के लिए यूनिवर्सिटी में घूम रहा था। वो कहते हैं ना, बाज़ औक़ात आपकी बहुत सी दुआओं के बावजूद आपका डर सच साबित होता है तो दुनिया लर्ज़ जाती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। सबूर यूनिवर्सिटी में नहीं थे और इसके हम जमात की मालूमात के मुताबिक वो तो सुबह 10:30 बजे पेपर देने के बाद यहाँ से जा चुकी थी। नीलम मेरे साथ मुसलसल राब्ते में थी। सबूर अभी तक घर नहीं पहुंची थी। इसकी खोज लगाते लगाते अब 3 बज गए थे। मैंने घर फ़ोन लगाया और अम्मा से अब्बा के बारे में दरियाफ्त किया, लेकिन वो भी अभी तक घर नहीं आए थे। मेरा वहम भी झंझोड़ने लगा। मैंने मोटरसाइकिल को किक लगाई, हमदानी विलास की तरफ चल पड़ा। वही हुलिया था, पतली पुरानी सी टी शर्ट, घिसा हुआ ट्राउज़र्स, पाँव में चप्पल और बिखरे बाल। मैं इसी हुलिया में पूरे आधे घंटे के बाद हमदानी विलास में था। मेरे लिए मेन गेट फ़ौरन खोला गया। पोर्च में अपनी फटपटी नुमा मोटरसाइकिल खड़ी करने के बाद मैं तेज कदमों से अंदरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ा जब सेठ हमदानी एक गुंडे ने बतीसी निकाले मुझे मुखातिब किया। दामाद जी, आप खैरियत? इस तरह के ये गार्ड्स और गुंडे हमदानी विलास में मंडलाते हुए नजर आना मामूल की बात थी, लेकिन इसके मुंह से निकले अल्फाज बिल्कुल गैर मामूली थे। मैं ठटक कर रुका। मेरे अब्बा कहाँ हैं? मैंने इसकी बतीसी को नज़रअंदाज करते हुए दांत पर दांत जमाए गुस्से से सवाल किया। आपके अब्बा इधर ऑफिस की तरफ शादी की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। इसने कमीनगी से आंख का कोना दबाए ऐसे कहा कि मेरे पूरे वजूद में चूंटियां रेंग गई। मैं इसी तरह परेशानी में तेवर चढ़ाए ऑफिस तक पहुंचा, लेकिन इससे पहले कि अंदर दाखिल होता बाहर खड़े गार्ड ने मुझे दाएं बाएं से थाम लिया और इनमें से एक ने मेरे कंधे पर दबाव डालते हुए कहा, रुकिए रुकिए दामाद जी, हर दफ़ा एक ही हरबाकार आमद साबित नहीं होता। अंदर बहुत अहम मीटिंग चल रही है। मैंने घूर कर इसकी तरफ देखा। वो मायने खेज अंदाज में मुस्कुरा दिया। मेरे अब्बा को बाहर लाओ, मैंने रौब से कहा। वो शादी की तैयारियों में मसरूफ़ है। दरअसल काम बहुत है और वक्त बहुत कम है। वो मायने खेज लहजे में जता रहे थे। मैंने भवें करी। मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब ये कि शाम 9 बजे आयत बीबी के साथ आपकी शादी है। आसमान पर बिजली कड़की थी। शायद
2 सेकंड के शौक के बाद मैंने मौका से फ़ायदा उठाते हुए पूरी कुव्वत लगाकर दोनों गार्ड से एक झटके में बाजू छुड़वाए और भागता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ा। दार से दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुआ। सामने अब्बा पुरसुकून अंदाज में मुस्कुराते हुए सोफे पर विराजमान थे और एक औरत नुमा मर्द टाइप का आदमी एक क्रीम रंग की मर्दाना शेरवानी हाथ में थामे खड़ा अब्बा को दिखा रहा था। दूसरे सोफे पर सेठ हमदानी बैठा था, जिसके चेहरे पर वही रोब और जलाल था। सबने एक साथ गर्दन घुमाकर मेरी तरफ देखा। अरे हादी बेटा, आओ आओ, ये देखो सेठ साहब ने तुम्हारे लिए क्या ज़बरदस्त शेरवानी बनवाई है। मैं अब्बा को नज़रअंदाज करता सेठ के पास पहुंचा और न जाने इस वक्त मुझ में कहाँ से हिम्मत आई कि मैंने इसके गिरबान को थाम लिया। सबूर कहाँ है? मैं आंखें निकालते हुए इसके चेहरे पर घुराया। मैं इतना ही कह सका कि 2 सेकंड के अंदर हमदानी के गुंडे मुझ पर झपट पड़े और मुझे अलग कर दिया। अब्बा सिर पिटाकर अपनी जगह से उठ खड़े हुए थे। सेठ हमदानी ने बड़े अंदाज में अपने कॉलर को दुरुस्त किया और फिर मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा। लगता है दामाद जी अभी सोए हुए उठकर आए हैं, इसलिए आवाज़ों में नहीं है। जाओ इनको ताज़ा दम करो, कुछ खिलाओ पिलाओ। इसने गुंडों को हुक्म जारी किया और फिर इसी तरह मुस्कुराते हुए अब्बा की तरफ देखा। अरे आप क्यों खड़े हो गए जावेद साहब? बैठिए, अभी तो कुछ और इंतजामात दिखाने हैं। आपका अभी जोड़ा तैयार करवाया है। अब्बा अब भी उलझे से मेरी तरफ देख रहे थे और इससे पहले कि मैं चीखता 3 गुंडे मुझे जबरदस्ती घसीटते हुए कमरे से बाहर ले गए। छोड़ो मुझे, छोड़ो। मैं अपने बाजू को छुड़वाने की नाकाम कोशिश कर रहा था, लेकिन वो किसी सूरत मुमकिन नहीं था। वो इतने मजबूत और डील रोल के साथ के थे कि मैं इनके सामने किसी मरियल चूहे जैसा लग रहा था। ऑफिस के बाहर लंबी राहदारी में लाकर इन्होंने मुझे एक झटके से छोड़ा। मैं हिल कर रह गया, जबकि वो दोनों अब मूंछों को ताव देते हंस रहे थे। क्या बदतमीजी आई है, मुझे अंदर जाना है। मैं आगे बढ़ा तो इन्होंने मुझे फिर रोक दिया। मैं अभी इनसे गुत्थम गुत्ता ही था जब सेठ हमदानी की आवाज़ सुनाई दी, छोड़ो इसे। दोनों आदमियों की 1 सेकंड से पहले रुककर पीछे हटे थे और अब सेठ हमदानी पीछे हाथ बंधे मेरे सामने खड़ा था। इसी गुत्थम गुत्ती में मेरे होंठ के पास एक कट लग गया था, जिसमें से अब खून रिस रहा था। शर्ट का गला एक तरफ को ढिलक गया था, आंखें सुर्ख थी और बाल मजीद बिखर गए थे। सेठ हमदानी ने मुझे बगौर देखा और फिर अपना हाथ मेरे गाल पर रखकर अंगूठे से होंठों के पास रिश्ते खून को साफ करते हुए कहा, सेठ हमदानी सिर्फ एक दफ़ा खबरदार करता है, दूसरी दफ़ा सिर्फ सज़ा देता है। याद रखो तुम आयत के लिए ही बने हो और इस दुनिया में तो मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा। आज रात को निकाह है, तैयार हो जाओ। इसने मुस्कुराते हुए मेरा गाल थपथपाया और फिर एक आदमी को आंखों में इशारा किया, सबूर कहाँ है? मैं चीखा, लेकिन सेठ हमदानी अनसुनी करता वापस जा रहा था और पास खड़े दोनों आदमियों ने मुझे थाम रखा था। सबूर कहाँ है? मैं मुसलसल चीख रहा था जब इनमें से एक ने मुझे झंझोड़ कर सीधा किया और फिर मेरी तरफ हाथ बढ़ाया और इस की उंगलियों में जकड़ी अंगूठी देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। ये मेरी वही अंगूठी थी जो 3 दिन पहले मैंने सबूर को पहनाई थी। मैंने खौफ से फटी आंखें ऊपर उठाई, लाश को जलाकर दफना दिया। ये सबूत है तुम्हारे लिए। वो मुझे अब अपना मोबाइल मेरी आंखों के सामने किए कुछ तस्वीरें दिखा रहा था। सबूर का पूरी तरह जला हुआ वजूद था। मुख्तलिफ तस्वीरें थी, जिनमें से एक में इसकी उंगली में पहनी अंगूठी वाज़िह थी। मेरी टांगों में जान नहीं थी रही। पल भर में मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाया और मैं धड़ाम से ज़मीन बोस हो गया। मैं शाम 4 बजे हमदानी विलास पहुंची थी और आते ही मेरे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ था। अब मुझे समझ आया कि नाना भी मुझे नानों को साथ लाने का क्यों कह रहे थे। पूरे विलास में मेरी और हादी की शादी की तैयारियां अरूज पर थी। नाना भी, ये किस तरह का मजाक है? मैंने हैरत से हंसते हुए पूछा। मुझे अब भी यकीन नहीं आ रहा था कि रात को मेरी शादी है। ये मजाक नहीं है लाडी, बताया तो था हादी को शादी की बहुत जल्दी है। मैं हैरत से हंसते हुए शर्मा गई और इसके सीने से लग गई। अच्छा, तो ये वजह थी जिसके लिए आप नानों को लाने की लिए जिद कर रहे थे? जी बिल्कुल। अब तुम भी तैयारी पकड़ो, लाहौर के बहुत अच्छे पार्लर से वक्त लिया है। लड़कियां कुछ देर में ही विलास पहुंच रही हैं, तुम उनके आने से पहले फ्रेश हो जाओ। उफ, मैं हैरान रह गई। मैंने हैरत से इनकी तरफ देखा। नाना अभी, यू आर ग्रेट। आई कांट बिलीव कि आपने इतना सब कर रखा है। अरे ये तो कुछ नहीं, कुछ देर में हादी की पूरी फैमिली गेस्ट हाउस पहुंच रही है। मैंने हंसते हुए इनके सीने पर सर रखा ही था कि अकब से आवाज़ आई, सेठ साहब वो दामाद जी बेहोश हो गए हैं। मैं और नाना भी एक साथ परेशान होकर पलटे। मैंने हैरत से नाना भी की तरफ देखा और फिर मुस्तस्फराना मुलाजिम को घूरा। कौन? हादी। ये बीबी, हादी साहब बेहोश हो गए हैं। कहाँ है वो? मैंने परेशान लहजे में सवाल किया, लेकिन जवाब नाना भी ने दिया। वो अपने अब्बा के साथ सुबह से यही है। मुझे लगता है नाश्ता भी नहीं किया था और यहाँ आकर काम में जुट गया। परेशान मत हो, मैं देखता हूँ।
नाना अभी ने पुरसकून लहजे में जवाब दिया। लेकिन मेरी तो जान पे बन आई थी, ऐसा भी क्या हो गया कि हादी बेहोश हो गया? नाना अभी ने कदम आगे बढ़ाए तो मैं भी तेजी से इनके पीछे साथ चल पड़ी। अरे तुम कहाँ जा रही है? तुम अपनी तैयारी करो, मैं देख लेता हूँ। नाना अभी ने मुझे बढ़ते देखा तो प्यार से रोकने के लिए कहा, लेकिन मुझे अब हादी को देखते बिना सुकून नहीं कैसे आ सकता था। नहीं, मैं आपके साथ जाऊंगी, मुझे हादी को देखना है। मैंने दो टोक लहजे में कहा और इसके साथ कदम बढ़ा दिए। मैंने दो टोक लहजे में कहा और इनके साथ कदम बढ़ा दिए। इसे हमदानी विलास के ही एक कमरे में लिटाया गया था। जब मैं और नाना अभी वहां पहुंचे, डॉक्टर हादी का चेकअप कर रहा था। मैंने फिक्रमंदी से बेड पर लेटे हादी को देखा। वो वाकई बहुत थका हुआ और बेहाल लग रहा था। मुझे इस पर प्यार आ गया। भला ऐसी भी क्या शादी की तैयारियां कि इंसान खुद का ख्याल ना रखे। डॉक्टर उठकर खड़ा हुआ और गहरी सांस लेते हुए इत्मीनान से बोला, कुछ परेशानी वाली बात नहीं, बस लगता है कुछ स्ट्रेस लिया है और कल शाम से कुछ खाया नहीं है। स्ट्रेस के लफ्ज़ पर मैंने परेशान होकर नाना बी की तरफ देखा, लेकिन वो डॉक्टर से गुफ्तगू में मसरूफ थे। डॉक्टर ने हादी को सुकून का इंजेक्शन दिया था, जिसके जरिए से वो 3-4 घंटे गुनूदगी में रहने वाला था। मैं बेड के पास आ खड़ी हुई। इस जहन अजीब कश्मकश का शिकार था। मुझे एक दफ़ा तो हादी से खुद पूछना चाहिए कि वो शादी के लिए तैयार है। मैं इन्हीं सोचों में गुम थी जब अकब से नाना बी की आवाज़ आई। कल से शादी के कामों में जुटा हुआ है, मैंने कहा भी था कि अपना ख्याल रखे। मैंने धीरे से सर हिलाया और मुड़कर इनकी तरफ देखा। नाना बी, मुझे निकाह से पहले हादी से बात करनी है। मैंने इनकी आंखों में देखते हुए फरमाइश की। हाँ कर लेना, लेकिन अभी फ़िलहाल चलो, बहुत तैयारी करनी है। इन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरा तो मैं लब भींचे सर हिलाया और फिर एक निगाह हादी पर डालती नाना अभी के साथ बाहर निकल गई। मेरी आंख खुली तो सर शदीद भारी हो रहा था और होश में आते ही मैं उछल कर उठ बैठा। रात के 7 बज रहे थे। मेरे ज़हन में आखिरी मंजर घूमा था। दिल जैसे फटने लगा था। सब कुछ ख़त्म हो गया था। मैं एक दलदल में धंस गया था और अपनी नादानियों की वजह से सबूर को खो दिया। मेरी आंखें जल रही थी। ज़हनी तवाज़न बिगड़ गया था। मैं एक झटके से उठा और दंदनाता हुआ हमदानी विलास के लाउंज में दाखिल हुआ। सामने सोफे पर बैठे हमदानी और आयत ने एक साथ मेरी तरफ देखा। मैंने पास खड़े गार्ड से बंदूक छीनी और सीधा दोनों के सर पर फायर कर दिए। ठा ठा गोलियां सीधी दोनों की खोपड़ियों के आर पार हुई थी। ये सब करने के लिए मुझे बंदूक चलानी आनी चाहिए थी और मैं सिर्फ ये सोच सकता था। मैं इस तरह बेड पर बैठा ये सोचते हुए दांत पीस रहा था। फिर कुछ ख्याल आते ही जल्दी से अपनी जेब से मोबाइल निकाला और सबूर के नंबर पर कॉल मिलाई। नंबर हुनूज बंद था। मेरे नंबर पर नीलम की कॉल्स की लंबी लाइन थी। मैंने जल्दी से इसका नंबर मिलाया और फ़ोन कान से लगाया। हेलो। इसके फ़ोन उठाते ही मैंने सहमी सी आवाज़ में हेलो कहा। दूसरी तरफ वो इसी तरह परेशान लहजे में पूछ रही थी, हेलो हादी, कहाँ हो सुबह से? सबूर का कुछ पता चला? मैं परेशान हूँ। इसकी बात पर जैसे मैं कांप गया। हकीकत बदल नहीं सकती थी। मेरी आंखें आंसुओं से भर गई थी। इसे कुछ भी बताने की हिम्मत कहाँ से लाता? कैसे बताता कि मैंने सब कुछ अपने हाथों से ख़त्म कर दिया? वो हेलो हेलो करती रही और इससे पहले कि मैं कुछ कहता सेठ हमदानी अपने गार्ड समेत कमरे में दाखिल हुआ। मैंने खूनख्वार निगाहों से इसे घूरा। वो कदम कदम मेरी तरफ बढ़ते हुए बोल रहा था, ऐसे मत देखो, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है कि इस लड़की को हमने मारा है। सारी ज़िंदगी भी लगा दो तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और अगर बिगाड़ भी लिया तो तुम और तुम्हारी फैमिली सारी ज़िंदगी इसका खमियाजा भुगतेगी। वो रोब से कहता मेरे पास आ खड़ा हुआ। अपने दोनों हाथों में मेरे चेहरे को दबोच लिया। तुम शायद भूल रहे हो कि तुम्हारी जान मैंने आयत के कहने पर बख्शी थी। मेरा नहीं ख्याल कि अब तुम मजीद कोई बेवकूफ़ी करोगे। मैंने पूरी कुव्वत से इसका हाथ को झटका और उठ खड़ा हुआ। इसी लम्हे कमरे का दरवाज़ा खुला और आयत के साथ मेरे सब घर वाले कमरे में दाखिल हुए। अब्बा, अम्मा, अक्सा, इकरा, अली, चचा, चची और रोहा सब मेरे सामने खड़े थे। आयत ने मुझे यूं गुस्से में भरे देखा तो तशवीश से निगाहें सुकेड़े करीब आ गई। वो और तमाम लोग हैरत से मुझे देख रहे। हादी, तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? वो सपाट लहजे में पूछ रही थी। सब लोग अब मेरी तरफ देख रहे थे। बोलो हादी, क्या तुम राजी हो? मैंने इसे खूनख्वार निगाहों से घूरा। अजान हो रही है। मेरी ज़िंदगी तबाह करके, सब कुछ ख़त्म करके अब वो मुझसे मेरी मर्ज़ी पूछ रही थी। मेरा सब कुछ तो लूट चुका था, लेकिन मैं इतनी आसानी से इसे बख्शने वाला नहीं था। मैं यहाँ शादी से इनकार करने आया। मैं यहाँ शादी से इनकार कर देता और फिर इंसाफ के लिए जूतियाँ चट खाता फिरता। ताकतवर लोगों को ख़त्म करने के लिए सिर्फ 2 ही तरीके होते हैं। पहला, इनकी तरह ताकतवर बन जाओ। दूसरा, इनकी जड़ों में घुस कर इनकी जड़ें काट दो। और मैंने दूसरे तरीके का इंतखाब किया क्योंकि मेरे पास इसके सिवा कोई चारा नहीं था। सब जवाब के इंतज़ार में मुझ पर निगाहें जमाए हुए थे। मैंने सुर्ख जलती निगाहें आयत की शफाफ आंखों में गाड़ी और स्पाट लहजे में कहा, हाँ मैं शादी करूँगा।
اس کی آنکھیں میرے جواب سے چمک اٹھی تھی اور ساتھ ہی ساتھ باقی سب نفوس کے چہرے بھی کھل اٹھے تھے۔ ایک میں تھا جس کے من اور آنکھوں کی جوت بجھ چکی تھی۔ وہ اب مسکرا رہی تھی، میری گہری مسکراہٹ اور وہی گالوں کے گڑھے۔ میں نے اپنی مٹھیاں سختی سے بھینچ لیں جو اسے جھنجھوڑ دینا چاہتی تھی۔ اسے پوچھنا چاہتی تھی کہ کیا پوری دنیا میں اسے میں ہی ملا تھا؟ کیوں میری زندگی برباد کر دی؟ بس ایک سوال ہو رہا تھی، صرف میرے دل کی تسلی کے لیے۔ وہ کھنکتے لہجے میں کہہ رہی تھی، میں نے سلگتی نگاہیں اس کے چمکتی آنکھوں میں گاڑ دیں۔ کیا اسے میری آنکھوں میں رینگتے سرخ ڈوڑے نظر نہیں آ رہے تھے، یا وہ جان بوجھ کر اسے لاپرواہی برت رہی تھی؟ وہ ابھی کدا سے میری آنکھوں میں جھانکتی ہوئی مستفسر ہوئی تھی، تمہاری زندگی میں کوئی اور ہے؟ مجھے ایسا لگا جیسے اس نے میرا دل دبوچ لیا۔ اس کی مسکراہٹ مجھے میرے زخموں پر برستا ہوا نمک لگ رہی تھی۔ میں نے اپنے آنسو ضبط کیے اور نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ شرما گئی، یا پھر شرمانے کی خوب اداکاری کی، لیکن اب سب ہنستے ہوئے کمرے میں داخل ہو گئے تھے اور میرے گھر والے یوں آ کر اس کے گلے لگے تھے جیسے اس نے کوئی مار کا سر کر لیا ہو۔ ان سب میں اگر کوئی مجھے دیکھ رہا تھا تو وہ تھا سیٹھ ہمدانی۔ میری سلگتی نگاہیں اس کی نگاہوں سے جا ملی جہاں طاقت کا زم اور دولت کا نشہ تھا، لیکن اب میں بھی سو چکا تھا مجھے کیا کرنا ہے۔ کہانی نفرت سے شروع ہوئی تھی اور اب انتقام پر جہاں پہنچی تھی۔ جی تو جناب، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔